और देखिए चलते चलते हम कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं। और हम आपको वो दिखाते हैं जो कोई नहीं दिखाता। हम इसलिए दिखाते हैं कि आपकी सोच बदले। सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा। समाज में कौन कौन रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं, यही तो दिखाने के लिए हम घर से निकलते हैं। तो आज हम दिखाते हैं कि हमारे लुधियाना के इनर व्हील क्लब है, वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो कैसे सोसाइटी को अप करने के लिए, सोसाइटी की भलाई के लिए काम करती हैं। तो आज उन्होंने हमें जहाँ इनवाइट किया है, हम जहाँ देखेंगे कि नमस्कार। अच्छा हैं दसो तुम कितने साल हो गए थोड़े मैंबर दे इनर इनर इधर आओ थोड़ा जा इधर आओ दसो देखिए तुमने तुसा बहुत लाइफ देखी है, बहुत कुछ देखा है। थोड़ा दसो अज के बच्चे है ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ, ਦੱਸ ਦੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਰ ਵੀਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੋਏ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 40 साल? हाँ जी, वेरी गुड, हाँ जी, एक्सीलेंट। 40 और साल 40 साल आ जाओ आप भी आ जाइए। देखिए हम यहीं पर आपसे मिल आओ के जी, इधर आइए, please। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, क्योंकि हम लुधियाना वालों को पता चले कि 40 साल ओल्ड मेंबर हैं इनर व्हील। तो देखिए 40 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਚੈਲੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਮਿਸਿਸ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਮੁੰਜਾਲ, ਹੋਰ 2-3 ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਪਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਲੇਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਬੰਦ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈਵਾ ਗਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਬਟਨ, ਕੰਘੀ ਕਰਨੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਿਸਿਸ ਆਭਾ ਰੰਜਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੀ ਬਿਕੇਮ ਸੋ ਮਚ ਅਟੈਚ ਟੂ ਆਵਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਚਾਰਜਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੋਟਰੀ ਭਵਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 1 ਕਮਰਾ, 2 ਕਮਰਾ, 3 ਕਮਰੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਕਿ ਸਲਾਈਵਾ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਟਸ ਐਨ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਪਟੀਚਿਊਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਨਰਵਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਨਰ ਵੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਓ ਵਿਕਟਮਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਪਾਹਿਜ ਆਸ਼ਰਮ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मतलब साडा काम जड़ा है वो सेवा का है एंड आई एंजॉय दैट। थैंक यू सो मच। देखिए बताया इन्होंने कि हम सेवा करते हैं। 40 साल हो गए लुधियाना में, 40 साल कितना अरसा बीत गया है तब से। मैडम जी आप भी साथ जुड़े हुए हैं? जी आप जी 40 नहीं 30-20 साल हो गए। मैं 2000 से इनरव्हील संस्था से जुड़ी हुई हूँ। जो इनरव्हील संस्था के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि एक ऐसी संस्था है, संसार की सबसे बड़ी औरतों की स्वयंसेवी संस्था है, जिसका मेन मकसद है फ्रेंडशिप एंड सर्विस। हम फ्रेंडशिप पे एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, आपस में मैत्री भाव रखते हैं, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है सोसाइटी में अंडर प्रिविलेज जो सेक्शंस हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनकी सेवा करने के लिए हम हमेशा के लिए तैयार रहते हैं। और इस संस्था का हमेशा हर साल एक नया उद्देश्य हमें दिया जाता है, नए गोल्स दिए जाते हैं जिनको पूरा करने में हम अपना काम करते हैं। ये 4 लेवल्स पे काम करती है संस्था, क्लब लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एसोसिएशन लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। 4 लेवल्स हैं इसके। आप कितने साल हो गए? आपको ज़्यादा हो गया होगा समय। मेरे को 30 इयर्स हो गए जी। हाँ ऐसा एंड आई एम प्राउड। मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस संस्था की मेंबर बनी हूँ। ये मेंबर एक फाउंडेशन है, ये फैमिली बन गई अब। और इसमें इतना अच्छा सहयोग है इनर व्हील का मेंबर्स का आपस में कि एक फैमिली में भी इतना नहीं होता कि एक मैसेज डालते हैं कि इसको हेल्प की ज़रूरत है, आप मानोगे नहीं, विद इन एन आवर, 1 घंटे में वो सारा
पूरा हो जाता है। नहीं, जैसे किसी आपके जो मेंबर हैं, किसी को प्रॉब्लम आती है, हॉस्पिटल में आते हैं, उनकी भी एक दूसरे की मदद करते हैं। नहीं, जो हेल्पर्स बिल्कुल नहीं, अच्छा। जो नीडी होता है, Needy होता जैसे है। किसी वर्कर की शादी, बच्चे की शादी है, ठीक है। या कोई बीमार है, जो अपने स्टाफ का बंदे के बाईपास सर्जरी है, ठीक है। सब कुछ, किसी को अपने स्टाफ के जो प्रिंसिपल था उसको घर लेना था, उसको फ्लैट के लिए लोन देना, बहुत दिल से ये संस्था काम करती है और हम सच्ची थैंकफुल है कि प्राउड फील करते हैं कि हम इसके मेंबर हैं। तो जब वो इनको लेके आए थे लुधियाना में इनर व्हील को, उनके भी आप थैंकफुल तो, होंगे। तो इंटरनेशनल लेवल पे है नहीं, जो सारा। जिन्होंने हाँ लुधियाना में बिल्कुल start जी, किया था। बिल्कुल बिल्कुल, हाईली थैंकफुल, मैडम चलो थैंक आप यू। दोबारा फिर ले लेंगे, आपके लिए बैठिए, बाकी वेट कर रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं है, वैसे दो बातें करनी है। आप कहते हैं नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे, आप बोलोगे जरूर, आप बोलोगे। क्या आप हमारे ये कहोगे हम लोग ये सेवा कर रहे हैं, हमारे में सेवा की भावना है। केवल अब तो लुधियाना में बहुत है, लेडीज क्लब बहुत है, लेकिन जो सेवा होती है, जो आपके में भावना है, इनर व्हील की 40 ईयर से ज़्यादा हो चले हैं आपको लुधियाना शहर में, आप भी मेंबर हैं, तो कितना अच्छा लगता है आपको, यही बता दीजिए फिर। यही बताते हैं कि हम एंजॉयमेंट भी करते हैं और सेवा भी करते हैं, और जो हमारे को कोई प्रॉब्लम पेश करता है, किसी लेडी, कोई कम्युनिटी, कोई एजुकेशन, कोई ऑपरेशन कराना है, तो उसकी हम नीड फुलफिल करने की कोशिश पूरी करते हैं। देखिए उन्होंने बताया कि कोई भी हो, उनकी हम हेल्प करते हैं, समाज में, सोसाइटी में मिलकर, इंसानियत है। चलो हो मैडम, क्या हाल चाल है? वेरी वेल बाजी, चलो चलो ठीक है, चलो ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ आ रहे हैं, ये ਅਸੀਂ खत्म करते हैं कि और चालू कर देने हैं। आप बताइए थोड़ा सा, क्योंकि 5-7 मिनट का हो जाए, लगे से दिखा देंगे जी, बताइए क्या। हम लोग इनर व्हील क्लब के मेंबर्स हैं और ये संस्था देश के 104 वर्ल्ड के 104 कंट्रीज़ में है और हिंदुस्तान में भी सब शहरों में है। तो मैं इस संस्था में क्लब लेवल से भी ऊपर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रह चुकी हूँ, जिसमें कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर, पार्ट्स ऑफ पंजाब और हिमाचल आता है। तो ये संस्था, मैं जब से शादी होके इस शहर में आई, पिछले 28 सालों से मैं इस क्लब की संस्था की मेंबर हूँ। मुझे हमेशा इसी संस्था ने मानना है, क्योंकि मैं कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढती थी सर्विस की, मुझे किट्टी वगैरह का शौक़ नहीं था, और इस ऑर्गेनाइजेशन एक जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है और सब फेयर है, जिससे हम बहुत जो नीडी लोग हैं उन तक पहुंच सकते हैं। कोई भी ऐसा सोशल कॉज नहीं है जिसमें इनर व्हील ना पहुंचने की कोशिश हो, बी इट हेल्पिंग समबडी विद फाइनेंसेस या अपना टाइम देना, जैसे सीनियर सिटीजन्स वगैरह है, कुछ काउंसलिंग करनी है किसी की उस तरह से, या बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके लिए हमें अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ती है, जैसे कोई एंटी प्लास्टिक ड्राइव है उसके लिए अवेयरनेस, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए अवेयरनेस, कोई विमेन कॉजेज़ हैं, कैंसर अवेयरनेस, हम बहुत सेमिनार्स और लेक्चर्स भी कराते हैं। इवन जैसे ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस करनी है कॉलेजेस में, बच्चों के लिए टाइम टू टाइम जो समय की ज़रूरत होए उसके मुताबिक हम करते हैं। और पीछे कोविड का समय आया जब कोरोना का, तब भी हमने बढ़ चढ़ के आगे लोगों का साथ दिया, पीपी किट्स दी, बहुत मास्क बांटे, हॉस्पिटल्स में जहाँ ज़रूरत थी मास्क सी, पीपी किट्स की, वहाँ हम आगे आए। तो ऐसे ही करके जो मेंबर्स हमारे खुद पर्सनल सेवा दे सकते थे, और मेरे ख्याल हमने इतने लोगों को राशन दिया, जिसने हमें अप्रोच किया हमने सबको दिया। अच्छा, मैं बात पूछूंगा, पहले जब आप ज्वाइन किया था कितने मेंबर थे उस समय? 30, 40, 50 कितने थे, और आज कितने हैं? बड़े हैं या कम हुए हैं? देखिए, लोगों के इंटरेस्ट इस तरफ है या नहीं है, ये बताओ मेरे को। लोगों का बहुत इंटरेस्ट है जी। जब बने थे तब 50 के करीब मेंबर थे, क्योंकि एक्चुअली ऐसे हैं, कुछ हमारे बहुत सीनियर मेंबर्स थे, वो बेचारे भगवान के पास चले तो ऐसे ही गए, जिंदगी और चलती नए रहती है। मेंबर जुड़ते भी रहते हैं, कुछ ट्रांसफ़र्स हो जाती हैं, चले जाते हैं, कुछ जुड़े रहते हैं, किसी का अगर नहीं भी होता कईयों का छूट जाता है, तो हम बढ़ाते रहते हैं मेंबर्स। तो आप अप्रोक्सीमेटली कितने आपको मालूम है या फिर आपके सेक्रेटरी को मालूम होगा? हाँ जी, 300 है, कितने होंगे? नहीं, हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं करते, क्योंकि उतना फिर मैनेज नहीं होता, उसमें ऑफिशियल वर्क होता है। तो हम 70-80 के बीच में अपनी मेंबरशिप रखते हैं। वो देखिए 70-80 के करीब मेंबरशिप होती है, और जो भावना रखते हैं दिल में इंसानियत के प्रति, वही मेंबर बनते हैं। वैसे एंजॉय भी करते हैं, कोई होली आ गया, दशहरा आ गया, कोई फेस्टिवल आता है तब भी एंजॉय करते हैं, लेकिन एंजॉय के साथ साथ लोगों की सेवा करना, और डिसेबल्ड है, कोई मेंटली डिस्चार्ज, कोई भी हैं जो बच्चे हैं, उनको भी जो मदद करते हैं। तो आपका परिवार आपको क्या कहता है कि ऐसा काम कर रहे हो, तो बहुत अच्छा लगता है आपको? मेरा परिवार तो बहुत प्राउड फील करता है जी। जब शुरू में मैंने ज्वाइन किया तो उनको आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं एक टिपिकल बिजनेस फैमिली में गई थी,
तो मेरे अंदर ये सेवा के गुण मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने करे थे, तो मैं यहाँ ढूंढती रही, अपॉर्चुनिटी करा। आज वो ही मेरे लिए इतना प्राउड फील करते हैं जब मैं कुछ अच्छा करती हूँ, और अपना सहयोग, मतलब मुझे कभी भी मना नहीं करते इन चीज़ों के लिए, सब कुछ करने को वो हमेशा अलाउ करते हैं। और अब हम कभी बाहर भी जाते हैं, क्योंकि हमारी नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, जिसमें क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो हमें कुछ रूल्स कुछ एक बन गए हैं, तो हम उसको अबाइड बाय करते हैं ताकि हम सब लोग एक दिशा में चलें। हमें नेशनल लेवल पे गोल्स मिलते हैं कि आप इस फील्ड में ज़्यादा काम करो, इस फील्ड में काम, जैसे एजुकेशन था मेरे टेन्योर में, बहुत काम हमने किया उस फील्ड में, स्कूल्स खोले और गवर्नमेंट स्कूल्स का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, टीचर्स को ट्रेनिंग दी, तो लाइब्रेरीज़ क्रिएट करी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ क्रिएट करी उन स्कूल्स में, इस तरह करके। तो अब हम लोग बाहर भी जाते हैं तो वो भी हमारे लिए फेलोशिप होती है, सब लोगों से मिलते हैं। तो आज की डेट में हमारे फ्रेंड्स हैं, जो इनर व्हील फ्रेंड्स हैं, वो हमारी एक फैमिली है कि हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह, तो हम रिश्तेदार से मिलें या ना मिलें, लेकिन हम अपने इनर व्हील फ्रेंड्स को ज़रूर मिलते हैं जहाँ पे भी जाएं। देखिए, इन्होंने बताया कि इनर व्हील जो एक फैमिली है, परिवार ही है। कहीं हम जाते हैं, रिश्तेदार को मिले चाहे ना मिले, इनर व्हील के जो मेंबर होते हैं उनके ज़रूर मिलते हैं। मैडम जी, आप सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी की सेवा कर रहे हैं, इंसानियत की सेवा कर रहे हैं, लुधियाना की सेवा कर रहे हैं, पंजाब की सेवा कर रहे हैं। आप ऐसी सेवा करते रहें और आपके साथ और आपका परिवार जुड़ता रहे, मेंबर जुड़ते रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी।